Today, I'm going to use Atomy Hemohym's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohym. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of immunity. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohym. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohym are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Atomy Hemohym.
Our immune system is so complex and organically connected. This time, we are going to introduce Atome's functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts. As a result of human application test of the functional raw material, Hemohim angelica, and other mixed extracts. NK cell activation, improved cytokine production. Immune cell activation was confirmed. Hemohim angelica and other mixed extracts have been recognized as a health functional food ingredient that can aid in improving immune function. From now on, we will tell you immunity-related health information. Why is immune function important? Immunity is our body's own defense system. The immune function recognizes harmful substances and removes them. Immune function is very important because it plays a decisive role not only in maintaining homeostasis of the body, but also in promoting health. Next, NK cells are white blood cells that are responsible for innate immunity and are cells that recognize virus-infected or stressed cells and directly kill them. Changes in NK cell activity are a criterion for judging whether immune function is enhanced or not. Cytokines are proteins secreted by cells involved in innate and adaptive immunity. It's responsible for the regulation of various functions of immune cells. Immunity. Are you feeling it now? Experience the new power of immunity now. Only for immunity. Atome Hemohim. Atome Hemohim's birth behind the scenes. Are you curious? From now on, we will tell you in detail. Atome Hemohim was born in Korea Atomic Energy Research Institute. A total of 50 billion won was spent on research. Biotechnology researchers participated. Angelica, Snidium, Peony. To discover these three combinations and find the optimal ratio took 8 years. नमस्कार और आज का सेशन जो है वो एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और उससे Recording in progress. कौन सी प्रॉब्लम को अपने जीवन से हमेशा के लिए भगा सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, प्रोडक्ट की सोर्सिंग के बारे में बात करेंगे, एटमी का ही क्यों के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार से थोड़ा सा इस एंगल को भी देखेंगे कि किस प्रकार से प्रोडक्ट को पिच किया जाए, किस प्रकार से कस्टमर को उसके बेनिफिट बताए जाए। ठीक है, तो आज का जो प्रोडक्ट है उसका कितने लोगों को पता है आज कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं? जिनको पता है वो चैट बॉक्स में लिखे आज कौन से प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले।
देखता हूँ चैट बॉक्स में क्या आया। तो जब तक चैट बॉक्स में कोई लिखता है आज कौन से प्रोडक्ट, अगर नहीं पता तो लिख दो डोंट नो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परिंदा जी, थैंक यू सो मच। और उससे पहले कि जो लोग बिल्कुल नए हैं और फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फर्स्ट वन लिख दें, वन से ही समझ में आ जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने बारे में बता दूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है नीरज वाधवा, मैं एक नेचुरोपैथ हूँ, दिल्ली पे बेस्ड हूँ। मेरी न्यूट्रिशनल थेरेपी जो है मेरी स्पेशलाइजेशन है। मैं फंक्शनल मेडिसिन का एक एक्सपर्ट हूँ। और आज के सेशन में टॉमी से करीब 3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। टॉमी में सेल्स मास्टर हूँ। और जो है आज बहुत बढ़िया किसी ने शेयर किया, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं का नाम है ओमेगा 3। तो इससे पहले कि मैं सिर्फ ओमेगा 3 के बारे में बताऊं, मैं कुछ अपने जीवन के बारे में कुछ शेयर करता हूं। आज से करीब 10 साल पहले मुझे एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ, जिसको मैं मेटाबॉलिक बोलता हूँ और उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर रिदमिया। वेंट्रिकुलर रिदमिया के अंदर जो है हमारी हार्ट बीट जो है वो सडनली मिस हो जाती है। हार्ट ऐसे चल रहा है और सडनली बीच में हार्ट बीट एक मिस हो गई। और इस प्रॉब्लम को मैं काफी अपने लिए हल करने की कोशिश कर रहा था, बट इस प्रॉब्लम को मैं अपने न्यूट्रिशन के माध्यम से मैं काफी हल कर पाया। क्योंकि ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने 2 साल ट्रीटमेंट भी लिया साथ में, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आई कि यदि एक पौधे को हम उसकी रिक्वायर्ड खाद पूरी नहीं करते तो वो पौधा भी ग्रो नहीं करता। उसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग को जब तक जरूरत की न्यूट्रिशन नहीं मिलती है तब तक ह्यूमन बीइंग हेल्थ में फ्लरिश नहीं करते। इसीलिए हम लोग जो आते हैं वो वेलनेस इंडस्ट्री से आते हैं। हम लोगों के न्यूट्रिशनल गैप्स को पूरा करके उनकी बहुत सारी सेहत में इंप्रूवमेंट में मदद कर सकते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन की कि उतनी ही इंपॉर्टेंस है न्यूट्रिशन की जितनी एक पौधे के लिए खाद की है। और जो गैप वो ये है कि हम भली भांति से हम परिचित हैं कि जो इस प्रकार का हमारे अराउंड खाना अवेलेबल है, जिस प्रकार से खेतों में खेती होती है, बल्कि मेरे एक जानकार है वो कहते हैं हम तो खुद कमर्शियल खेती करते हैं लेकिन हम अपने खेत का कोई सामान नहीं खाते। तो उसको देखते हुए कि क्या वो खाना हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है और वो हमारे को वो सब सामान दे पाता है जो हमारे शरीर को चाहिए, तो उस मिसिंग गैप्स को पूरा करने के लिए हम सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। और उसी एक कैटेगरी में ओमेगा 3 भी आता है। मेरे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सांस लेना है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए खाना खाना है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पानी पीना है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ओमेगा 3 की पूर्ति करना भी है। जब ओमेगा 3 की पूर्ति नहीं होती तो सिर से लेकर पैर तक शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के सिम्टम्स देता है जो जिससे लोग डील कर रहे होते हैं और फिर उन सिम्टम्स का ही इलाज करने के लिए दौड़ते हैं। तो जैसे मैंने पूछा था कितने लोग इस सेशन में हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन कर रहे हैं। तो अभी किसी ने 1 लिखा नहीं, तो जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं वो 1 लिखें, नंबर 1 लिख देंगे, उससे ही पता चल जाएगा। तो मेरे को ये आइडिया लगेगा कितने लोग नए हैं। मैं उतनी डिटेल में और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ओमेगा 3 भी नहीं पता। अच्छा प्रीति जी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, वेलकम आपको। तो मेरे को एक चीज और भी जाननी है कि कितने लोग हैं जिन्होंने ओमेगा 3 को कभी नहीं सुना। डोंट नो लिख सकते हो आप, कभी पता ही नहीं है ओमेगा 3 होती क्या। ये किस चिड़िया का नाम है ओमेगा 3, चैट में लिख सकते हो डोंट नो। लेट्स फाइंड आउट कितने लोग हैं जो ओमेगा 3 के बारे में नहीं जानते और उससे थोड़ा अवेयरनेस का पता चलेगा। हम इस वक्त वी आर एट 57। मैं जानना चाहूंगा 57 में से कितने लोग हैं जो ओमेगा 3 ना सुना, ना देखा, ना खाई। अगर आपने खाई भी नहीं है ना तब भी आप लिख सकते। तो बड़े सारे आज न्यू लोग हैं। प्रीति जी हैं, SSM है, अंकित जी, अच्छा ज्योतिराम शिंदे जी हैं, वेलकम आपको। अच्छा निशु जी ने लिखा डोंट नो। ओके, तो ना या तो आप उस कैटेगरी में है कि कभी खाई नहीं, या उस कैटेगरी में है कि आपने सुना भी नहीं। 2-3 तो वो ने बोला। तो ओमेगा 3 क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। फैटी एसिड मतलब एक प्रकार की फैट।
जैसे देसी घी भी एक प्रकार की फैट है। तो अगर हम देसी घी की प्रोफाइल, ओके, किसी ने बोला कस्टमर को दिया पर खाई नहीं, ओके गॉट। तो देसी घी भी एक प्रकार की फैट है। और ऐसे ही फैट की एक प्रोफाइल होती है न्यूट्रिशनल, कि आप फैट को कैसे भागों में बांट सकते हैं। उनमें से एक भाग को बोलते हैं फैटी एसिड, ठीक है। तो ओमेगा 3 एक इसेंशियल फैटी एसिड है, और इसके साथ इसेंशियल वर्ड हमेशा लगाया जाता है। ये भी एक प्रकार की फैट है। और इसेंशियल वर्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और हमारा शरीर इसको खुद नहीं बना सकता। ये बहुत सारी चीजें हमारा शरीर खुद बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बी कॉम्प्लेक्स हैं जो हमारे शरीर, बी कॉम्प्लेक्स के हिस्से हैं जो हमारा शरीर बना सकता है। विटामिन डी हमारा शरीर बना सकता है, बहुत सारे एंजाइम हार्मोन्स हमारा शरीर बना सकता है। लेकिन ओमेगा 3 एक ऐसा इसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारा शरीर बनाता नहीं, और इसकी पूर्ति हमें अपने खाने से करनी होती है। और इसके बिना रियलिटी में देखो तो जीवन ही संभव है, क्योंकि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड है उससे हमारे शरीर के जो सेल होते हैं उसकी आउटर लेयर, सेल की आउटर लेयर ओमेगा 3 से बनती है। और अगर इसकी कमी हो जाती है और वो इंसान ओमेगा 3 की पूर्ति नहीं करके ओमेगा 6 खाता है, तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ ओमेगा 6 क्या होता है। ओमेगा 6 भी एक फैटी एसिड है, जैसे ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है, उसी प्रकार से ओमेगा 6 भी एक फैटी एसिड है। और ये वाला जो फैटी एसिड है ओमेगा 6, ये ज्यादातर हमारे खाने के तेल से, जो हम सोयाबीन का तेल खाते हैं, बली का तेल खाते हैं, डिफरेंट प्रकार के तेल, मस्टर्ड का तेल खाते हैं, इन सब के अंदर ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है, जो वो भी शरीर के लिए जरूरी है, बट ज्यादा मात्रा में ओमेगा 6 अगर हम ज्यादा कंजम्पशन कर लेते हैं तो एक वो शरीर में तकलीफ देता है। और उस तकलीफ को बैलेंस जो है ना वो ओमेगा 3 करता है। इसका मतलब ये है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अगर एक सही बैलेंस हम शरीर में रखते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। बहुत सारे लोगों का ओमेगा 3 बहुत कम होता है और ओमेगा 6 बहुत हाई होता है। मतलब वो ओमेगा 3 कम खाते हैं अपने खाने के अंदर, और ओमेगा 6 भर भर के खाते हैं। जो ज्यादा ओमेगा 6 खाने के तेलों से, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर का तेल, तो उस प्रकार के जो ऑयल्स हैं जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, जो बीजों से तेल निकलते हैं, उन तेलों में से ओमेगा 6 होता है। और जिन लोगों का ये बैलेंस सही मात्रा में नहीं रहता, ये 1:1 रहना चाहिए। मतलब अगर जितना आप शरीर में कंजम्पशन ओमेगा 6 की कर रहे हैं, उतनी ही कंजम्पशन आपने ओमेगा 3 की करनी है। लेकिन ये बैलेंस अक्सर देखा जाता है, इसका एक ब्लड टेस्ट भी होता है, तो आप ब्लड टेस्ट करके भी ये जान सकते हो कि आपका ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस कैसा है। बहुत सारे लोगों का ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस नहीं होता, जिसमें ओमेगा 6 बहुत हाई मात्रा में पाया जाता है और ओमेगा 3 बहुत लो मात्रा में पाया जाता है। और बाय द वे, अब मैं खाने का संबंध बताऊं तो ओमेगा 3 जो है देसी घी में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो है अलसी के जो बीज होते हैं उसके तेल में पाया जाता है, फ्लैक्ससीड के अंदर पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे बीजों में ओमेगा 3 मिलता है। लेकिन ओमेगा 6 जो है, अब ज्यादा ओमेगा 6 हमारे को खाने के तेलों से मिलता है, और इसका बैलेंस खराब होने की वजह से शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जिनमें से एक प्रॉब्लम को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। अब ये कोई बीमारी नहीं है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है कि कहीं लाली हो सकती है, कहीं सूजन हो सकती है, कहीं बुखार हो सकता है। ये सारे को कलेक्टिवली हम इन्फ्लेमेशन, लाली आना, सूजन आना, बुखार आना, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इसका जो बैलेंस बिगड़ जाता है, जिनके शरीर में ओमेगा 3 कम और ओमेगा 6 ज्यादा रहता है, हो सकता है वो लोग चांसेस है ज्यादा बीमार पड़े, उनके शरीर की इम्यूनिटी लोअर हो जाती है। क्यों लोअर हो जाती है? क्योंकि जो वो न्यूट्रिशन खा रहे हैं, जो वो खाना खा रहे हैं, वो उनके शरीर को नहीं लगता। ओमेगा 3 से हमारे शरीर का जो सेल होता है उसके आउटर लेयर तैयार होती है, जो ये डिसाइड करती है आपका खाया हुआ कौन सा न्यूट्रिशन आपके सेल में घुसेगा और नहीं घुसेगा। तो अगर ओमेगा 3 की कमी होती है और ओमेगा 6 शरीर में ज्यादा होता है, जो कि खाने के तेलों से आ रहा है, कि आपने सुबह सब्जी खाई उसमें तेल, दोपहर को आपने सब्जी खाई उसमें तेल, रात को आपने सब्जी खाई उसमें तेल, अगर आपने पराठा खा लिया बाई चांस तेल का खाया तो फिर उसमें तेल, तो अगर आपने फ्राइड फूड खाया, पकौड़े खाए, क्या बोलते हैं, समोसा खा लिया, या किसी भी प्रकार का फ्राइड फूड खाया, भटूरे खाए, या फिर आपने लेट्स एग्जांपल से आपने डोसा ही खाया, उसमें भी तेल लगा होता है, या बड़ा खाया जो कि फ्राइड होता है। तो ये सब रस्तों से जो हमारे शरीर के अंदर, या कोई नमकीन भुजिया खाई जो कि फ्राइड होती है, तो जितनी भी फ्राइड चीजें हैं, नॉन फ्राइड भी जहाँ तेल का इस्तेमाल होता है जैसे सब्जी, इन सोर्सेज से जो ओमेगा 3 हमारे शरीर में जाता है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है
और ओमेगा 3 की जब हम कंजम्पशन कम करते हैं इसमें घट जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहली प्रॉब्लम जिसको हम बोलेंगे शरीर में आती है उसको। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन्फ्लेमेशन को हम सूजन बोल सकते हैं, बुखार बोल सकते हैं, लाली बोल सकते हैं, रेडनेस भी बोल सकते हैं। अब इनसे लोगों को जनरली ये कमी जब आती है तो प्रॉब्लम्स कम, सिर से लेकर पैर तक किसी भी एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है। एक व्यक्ति के अंदर ओमेगा 3 की अगर कमी और ओमेगा 6 ज्यादा है और उतनी ही वैल्यू दूसरे इंसान में भी ओमेगा 3 कम है और ओमेगा 6 ज्यादा है, तो दोनों को अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अलग अलग सिम्टम्स आ सकते हैं। कोई एक इंसान कंप्लेंट कर सकता है कि मेरे पैरों में बहुत दर्द होती है, जब मैं, जैसे हमारे पास एक केस, एक लेडी ने बोला कि जब मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरे पैर बहुत दुखते हैं, मेरे से खड़ा ही नहीं होगा। और जब हमने उनको ओमेगा 3 स्टार्ट करवाई तो कुछ घंटों में ही, 24-48 घंटों में ही उनका फोन आ गया कि मुझे पता। लेकिन वही ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी एक दूसरे इंसान के अंदर उस ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइटी हो सकती है, ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। इसका मतलब ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी हमारे शरीर के किसी भी अंग को इंपैक्ट कर सकती है। चाहे दो इंसान में सेम डेफिशिएंसी है लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब अगर हम ऊपर सिर से शुरू करें और नीचे तक जाएं तो ओमेगा 3 की सबसे बड़ी डेफिशिएंसी का एक सूरत एक कैसे दिखता है कि आप किसी इंसान को देख के बता सकते हो, खासकर लेडीज को, कि उनको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है कि उनके बाल अगर दो मुंहे, टेढ़े और रूखे रूखे हैं और धुलते नहीं है सही ढंग से, जैसे होता है ना हम बाल स्ट्रेट कर लेते तो कैसे स्मूथ हो जाते हैं, लेकिन बाल जो है टेढ़े मेढ़े और दो मुंह और रूखे होते हैं, वो एक साइन होता है कि ओमेगा डेफिशिएंसी इस इंसान के अंदर हो सकती है। और बहुत बार ओमेगा 3 का सेवन करने से ये डेफिशिएंसी पूरी होने की वजह से स्त्रियों के बाल, लेडीज के जो बाल हैं वो सुंदर, फ्लफी और बहुत स्मूथ और सिल्की होते हैं। इसी प्रकार से और नीचे चले तो स्किन की तरफ अगर देखें तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी स्किन को भी बहुत इंपैक्ट कर सकती है। अब किसी इंसान को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से पिगमेंट हो सकती है और किसी इंसान को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से एक्ने हो सकता है। और ये जरूरी नहीं किसको पिगमेंट होगी, किसी को एक्ने होगा। तो बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि जब हम ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पूरा करते हैं लोगों को एक्ने में रिलीफ आ जाता है। जब हम ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पूरी करते हैं पिगमेंटेशन में इंप्रूवमेंट आता है। तो इसी प्रकार से ऐसे बहुत बार ऐसा हमारे पास, जैसे मैं अपना एक केस बताता हूँ, हमारे पास एक केस आया, उसकी एज क्या, 30 years old मेल, नॉट मैरिड, और उन्होंने हमारे को आके ये कंप्लेंट करी कि मुझे ना इंडाइजेशन रहता है और मेरे को बड़ी डिप्रेशन और एंजाइटी फील होती है। तब डिप्रेशन मतलब या तो मेरे को लगता है बहुत दुखी दुखी सा हो रहा हूँ, या मेरे को लगता है बहुत घबराहट सी हो रही है। ये मतलब दोनों अलग अलग तरह के सिम्टम्स हैं। और साथ में उनको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, तो हमने जो बाकी के काम किए उसके साथ हमने बोला कि आप ओमेगा 3 तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होने की वजह से अक्सर शरीर में या तो एंजाइटी, बहुत सारे लोग एंजाइटी एक्सपीरियंस करते हैं या फिर बहुत सारे लोग डिप्रेशन एक्सपीरियंस। और मैं बताऊं, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरे को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है, वो अपनी परिस्थिति को ब्लेम करेगा। या एंजाइटी हो रही है तो परिस्थिति को, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एग्जाम, बच्चे ने एग्जाम देना है और उसको एग्जाम की वजह से घबराहट हो रही है और उसको आप देख पा रहे हैं इसको घबराहट ज्यादा हो रही है, तो आप यही बोलेंगे तो एग्जाम की वजह से घबराहट हो रही है। लेकिन आप एक इंसान की घबराहट का लेवल भी इससे तय होता है कि उसके शरीर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। उसी प्रकार से जब ये 30 साल के नौजवान थे, नेवर मैरिड, सिंगल, हमारे को मिलने के लिए आए, तो हम नोटिस कर पा रहे थे इनको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, और वो डेफिशिएंसी पूरी करने से उनको बहुत फायदा मिला, बोथ डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन भी कितने। अब जब एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम ब्रेन की बात करते हैं। तो लंबे समय तक, फॉर एग्जांपल, अगर लंबे समय तक, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लंबे समय तक अगर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी शरीर में रहती है तो बहुत सारे लोग मेमोरी लॉस एक्सपीरियंस। क्यों? कि उनको धीरे धीरे लगता है हमारी मेमोरी कमजोर होती है। और मेमोरी लॉस के मैं आपको सिम्टम्स बताता हूँ। मेमोरी लॉस एक दिन में नहीं होती, मेमोरी लॉस बहुत छोटी छोटी चीजों से हो सकता है। मैंने गाड़ी लगाई, कहाँ भूल गया, मैंने चाबी रखी, कहाँ भूल गया। और फिर जब थोड़े ज्यादा सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, अक्सर 50 और 65 साल की उम्र में देखते हैं, मैं कहीं जा रहा था घर से निकलने के बाद, मैं कहाँ जा रहा था, मैं तो बाहर निकला, लेकिन ये ध्यान में नहीं आ रहा मैं जा कहाँ रहा था।
तो ये भी एक स्टेज है मेमोरी लॉस। तो बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि जिन लोगों में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी तो अक्सर मेमोरी लॉस पाया जाता है। अब उससे भी नीचे है तो एक बड़ी अच्छी बात है, हमारे मेरे गुरुजी बोलते हैं व्हाट इज गुड फॉर द ब्रेन इज गुड फॉर द आईज। अब पता है हमारे ब्रेन के पास दो ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा है हमारे ब्रेन के पास, कान और आंख सबसे नजदीक है, इनमें आंख जो है और भी ज्यादा नजदीक। तो व्हाट इज गुड फॉर द ब्रेन इज गुड फॉर द आईज का मतलब है कि अगर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होगी तो आंखें कमजोर हो सकती हैं, आंखों का प्रेशर बढ़ सकता है। और तो मैं केस भी आपको सुनाता हूँ, लुधियाना से एक सरदार जी आए, हेड ऑफिस में ही मेरे को मिले और उन्होंने एक बड़ा अच्छा हमारे को टेस्टिमोनियल दिया। वो उनकी ना आंखें धीरे 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 उन्होंने नोटिस किया आंखों की ताकत जो है थोड़ी कमजोर हो गई और उतना अच्छा दिख भी नहीं रहा उनको। और फिर उन्होंने काफी मेहनत भी करी अपनी आंखों के लिए, लेकिन उनको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले, काफी इधर उधर गए, लोगों से मिले, रिजल्ट्स नहीं मिले। तो उन्होंने और पीरियड कुछ टाइम बीत गया तो थोड़ा टाइम बाद उनको ज्वाइंट प्रॉब्लम भी आने लगी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम आ रही है तो आप ओमेगा 3 का सेवन स्टार्ट करें, ये ओमेगा 3 की एक डेफिशिएंसी। उन्होंने बोला मैं ओमेगा 3 तो मैंने बीच में खाई भी थी, बड़े साल एक साल पर खाई थी, मुझे तो कुछ खास फायदा भी नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला आप ना ओमेगा 3 एटमी का ट्राई करो और इसका डिफरेंस देखो, आपको ज्वाइंट पेन में बहुत आराम। वो सदाजी लास्ट वीक मेरे को हेड ऑफिस में भी मिले, मैं लास्ट वीक थर्सडे को हेड ऑफिस गया था तो मेरी सदाजी से दोबारा मीटिंग हुई, ये मैं उन्हीं की कहानी सुना। और वो ना मेरी डाउनलाइन है ना मेरे को जानते हैं, ना मैं उनसे हेड ऑफिस में ही पहली बार। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो है जॉइंट पेन के लिए ओमेगा 3 खाना शुरू किया और मैंने किया 2-3-4 महीने के अंदर मेरे को ना सिर्फ जॉइंट पेन में मैंने धीरे धीरे मेरी आईसाइट भी बेटर होनी शुरू। तो बहुत बार लोग ओमेगा 3 जो की डेफिशिएंसी की वजह से लोगों की आईसाइट कम हो। इनफैक्ट मैंने खुद नोटिस किया है, मेरा नंबर जो 1.50 था अब वो मेरा नंबर 1.25, तो मैं थोड़े नंबर का चश्मा कम था। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से मुझे भी ये थोड़ा सा एडवांटेज है। तो ये एक जो है ना सरदार जी का जो है ना एक ऐसा टेस्टिमोनियल था जो उन्होंने कहा भी नहीं था, लेकिन उनको ओमेगा 3 के से बहुत फायदा। तो अब हम और नीचे आते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। तो जैसे खांसी जुकाम बहुत होता है, तो मेरे 10 साल के प्रैक्टिस में मेरा एक एक्सपीरियंस ये है कि जिन लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है उनकी इम्यून सिस्टम जो है ना नॉर्मल से कमजोर। और क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होने का मतलब है जब भी आपकी आसपास बैक्टीरिया वायरस के अंदर घुसा, बैक्टीरिया वायरस तो सब जगह है, आप ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज बस में ट्रैवल, गाड़ी में किसी और के साथ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं और आप ग्रुप ऑफ लोगों के साथ हैं, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे एक ही जगह पे हो जाते हैं तो उस एनवायरमेंट में कोई ना कोई तो बैक्टीरिया वायरस कैरी कर ही रहा। और वैसे भी हवा में बैक्टीरिया वायरस तो हमेशा ही होते हैं, तो अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो वो बैक्टीरिया वायरस आपके घुसेगा और अपना घर बनाएगा और फ्लरिश करेगा और उसका रिजल्ट होगा कि जिन लोगों को ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होती है वो अक्सर साल में नॉर्मल से ज्यादा मिला। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि एक टाइम था जब मैं क्लियर होता था कि मुझे अगर बुखार हुआ है तो सीजन चेंज हो जाए, मतलब गर्मी से सर्दी में जाएंगे तो खांसी जुकाम बुखार हो गया, और क्या बोलते हैं फिर सर्दी से जब गर्मी जाएंगे तो खांसी जुकाम बुखार हो गया। तो बहुत बार लोग आकर बोलते हैं हमारे को तो जो बुखार और खांसी हो रहा है, तो जब सीजन चेंज होता है हमें बुखार होती है। व्हाट दे मिस आउट इज हर आदमी को सीजन चेंज मतलब आपको हो रही है और आप उस प्रकार के इंसान है जिसको पता है हर साल में 2 बार तो बीमार पड़ते ही हैं जब मौसम बदलता है, तो वो मौसम की वजह से नहीं पड़ रहे, चेक कीजिए कहीं आपको ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी तो नहीं। तो और दूसरा ये कि ऐसा नहीं है कि मैं बीमार नहीं पड़ता, लेकिन ओमेगा 3 क्योंकि मैं सेवन रेगुलरली करता रहता हूँ और मैं इम्यूनिटी को बिल्ड रखता हूँ, तो अगर मैं बीमार पड़ भी जाता हूँ तो मेरा रिकवरी टाइम बहुत मेरे ख्याल में शायद 24 घंटे मैक्स 48 घंटे या 48 मतलब 48 मैक्स बोल रहा हूँ। जनरली मैं 24 और 48 घंटे के बीच में बैक टू वर्क होता हूँ। अगर मेरे को बुखार आया भी है तो वो बुखार बहुत जल्दी उतरता है, जुकाम खांसी बहुत जल्दी जाती है और मैं बैक टू वर्क। इसका मैं बहुत बड़ा श्रेय ओमेगा 3 को भी देता हूँ क्योंकि मैं अपने अंदर लेवल को मेंटेन करता हूँ। अब नेक्स्ट ये है, इससे और आगे चलते हैं। मैंने जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि जॉइंट पेन्स में बहुत तकलीफ होता है, स्किन हम स्किन तो भूल ही गए, बहुत बार ऐसा होता है कि तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग स्किन प्रॉब्लम से डील कर रहे होते हैं और वो स्किन प्रॉब्लम्स जो है ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, उसमें कुछ योगदान ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी का।
तो इसलिए तो खासकर जो लोग सोराइसिस से डील कर रहे होते हैं, जो लोग क्या बोलते हैं एक्जिमा से डील कर रहे होते हैं, जो लोग लंग या तो स्किन को छोड़ के वैसे ही लंग्स की बात करें तो लंग डिस्कॉर्ड से डील कर रहे होते हैं, तो बहुत बार उनको उनकी इस प्रॉब्लम में एक योगदान ओमेगा 3 डेफिशिएंसी का भी है। तो स्किन प्रॉब्लम में भी रिलीफ आता है। ओवर एंड अबव द ट्रीटमेंट जो भी वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो अपनी जगह है, ठीक है? तो ओवर एंड अबव द ट्रीटमेंट ओमेगा 3 का जो सेवन है उससे बहुत जल्दी और बहुत रिलीफ मिलता है। अब हमने जॉइंट्स की बात करी, डाइजेशन को कैसे बूस्ट, तो इसलिए क्या ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी डाइजेशन को इम्पैक्ट करती है? वो करती है। तो जो अगर ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होगी तो डाइजेस्टिव सिम्पटम्स भी आ सकते हैं, किसी को गैस हो सकती है, किसी को ब्लोटिंग हो सकती है, किसी को गैस और ब्लोटिंग की वजह से बॉडी पेन हो सकता है। बहुत बार, जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मैं बहुत साल पहले करीब जब मैं 30-32 साल का था तो मुझे लगता था मुझे सर्वाइकल हो गई। मैं बहुत साल तक ये समझता रहा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। मैंने एक्सरे निकलवाया तो मेरे एक्सरे में भी आया कि मेरे को सर्वाइकल का इशू है। थोड़ा बहुत गैप में चेंज था, बट मैंने एक चीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज की, सर्वाइकल तो है लेकिन दर्द जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मतलब जब पेट में गैस बनती है तो वो पेट को तंग नहीं करती, वो वेगस नर्व को तंग करती है। जो पीछे ये वाला हिस्सा है वेगस नर्व को तंग करती है वो गैस, और उसकी वजह से सर्वाइकल का पेन। एक्चुअली में जो मुझे सर्वाइकल का पेन होता है तो वो गैस और ब्लोटिंग होती है। तो मैं पहले फिजियोथेरेपी कराने के लिए दौड़ता था कि मैं फिजियोथेरेपी करा के आऊंगा तो मेरे को सर्वाइकल पेन में आराम आएगा। रियलिटी इज मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने काम किया, गैस और ब्लोटिंग खत्म करी तो मेरी जो है मेरे को सर्वाइकल में आराम, और ये मुझे कुछ साल लगे समझने में। तो मैं बहुत साल तक बिल्कुल क्लियर था, मैं डॉक्टर बोलता था मुझे कभी गैस और ब्लोटिंग नहीं होती, पर रियलिटी थी कि मेरे को गैस और ब्लोटिंग ही हो रही थी, सिर्फ मेरे को पेट वाला जो हिस्सा है वहां डिस्कम्फर्ट नहीं था, मेरे को दर्द यहाँ होती। तो ये मेरी गैस और ब्लोटिंग यहाँ हो रही होती है। तो जब वो मुझे समझ में आया तो मैं इस प्रॉब्लम को अपने लिए सॉल्व कर पाया, और उसमें सॉल्व होने में बहुत बड़ा योगदान ओमेगा 3 का। तो अच्छा, मैं वैसे जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए बता दूं, जब मैंने अपना ओमेगा 3 का टेस्ट कराया था तो मेरा ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 का रेशियो वाज 24:1, 24/1, क्योंकि होना चाहिए 1/1, और बहुत ज्यादा अगर है तो 3/1। इसका मतलब है 3 पार्ट्स ऑफ ओमेगा 6 एंड 1 पार्ट ऑफ ओमेगा 3। अगर इस वैल्यू में भी है तो आप बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहें। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ते हैं ओमेगा 3 कि मैंने क्या क्या फायदे देखे हैं दुनिया में लोगों के साथ काम करते करते। एक बहुत बड़ा मैंने फायदा देखा है कि जो लोग डायबिटिक होते हैं वो अक्सर ब्लड शुगर के ऊपर काम करते रहते हैं। दवाई को खा के ब्लड शुगर, खाना खाते हैं ब्लड शुगर ऊपर जाती है, दवाई खाते हैं ब्लड शुगर नीचे आती है। तो एक एस्पेक्ट मिस आउट कर जाते हैं कि वो ब्लड शुगर के कंट्रोल में ओमेगा 3 का भी बहुत बड़ा। तो इसका मतलब है डायबिटिक आदमी या वो आदमी जिसको ब्लड प्रेशर है, वो आदमी भी अगर ओमेगा 3 का सेवन करेगा तो उसको कुछ न कुछ उसमें एरिया में फायदा मिलेगा। ब्लड शुगर कंट्रोल बेटर हो जाएगा, गोलियां की रिक्वायरमेंट कम होगी, गोलियों की स्ट्रेंथ कम लगेगी। लेकिन इस काम को आपको अपने डॉक्टर के साथ सलाह में डॉक्टर के साथ मिलकर करना, क्योंकि वहां पे दवाई है। तो आप देख पा रहे हैं शायद ही कोई एरिया, और एक एरिया पकड़ के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी से सेक्सुअल डिस्फंक्शन आता है आदमियों के अंदर। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी की वजह से लेडीज की पीरियड साइकिल खराब हो सकती है। ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी, और ये अकेली एक डेफिशिएंसी नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी है तो ही ऐसे होगा। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें ओमेगा 3 का भी एक योगदान होता है। उसी प्रकार से जो मैंने ये देखा है कि जिन लड़कियों को पीसीओडी पीसीओएस होता है, या सिस्ट हो जाते हैं, या बच्चेदानी के ऊपर सिस्ट हो जाते हैं, मैंने उनके अंदर भी जब टेस्ट कराया तो मैंने पाया उनका ओमेगा 6 से ओमेगा 3 की रेशियो बहुत हाई थी, 24:1, 30:1, 50:1, 100:1। उस लेवल तक भी मैंने ब्लड टेस्ट के अंदर रेशियोज देखी हैं। तो फिर उसके बाद जो है ना, और मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को ओमेगा 3 से रिलेट नहीं करते। तो मेन का सेक्सुअल फंक्शन भी इंप्रूव करती है, लेडीज की जो सिस्ट आ जाती है, जो बच्चेदानी के ऊपर किसी प्रकार की रसोली आ जाती है, उस केस में भी ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। ठीक है, तो आप एक बार नोटिस कर रहे होंगे कि शायद ही कोई एरिया बचता है। फॉर एग्जांपल मेन के अंदर प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, तो प्रोस्टेट का सोल्यूशन नहीं है, प्रोस्टेट की ये दवाई नहीं है, लेकिन एक को आपको समझना है कि जब जब शरीर में ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी होगी
डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एरियाज में इम्पैक्ट आ सकते हैं और डेफिशिएंसी पूरी होने से उनको बहुत लाभ और फायदा हो। अब आ जाओ एटमी के, कि भाई एटमी के ओमेगा 3 के दो प्रकार के ओमेगा 3 है। मोस्टली दुनिया में बड़े साल, जब मैं भी छोटा था तो जब मैंने जिंदगी में पहली बार ओमेगा खाया था वो फिश ऑयल का, तो उस जमाने में केवल फिश ऑयल का ही ओमेगा आता था, वो मछली की कैप्सूल होते हैं, वो नॉन वेजिटेरियन। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे साइंस ने करी तो ओमेगा 3 वेजिटेरियन भी आने लग गए, हमारे पास सिस्टम आ गए, तरीके आ गए कि हम वेजिटेबल से ओमेगा 3 निकाल लें। तो जो एल्कमी का जो ओमेगा 3 है वो एक फिश ऑयल के फॉर्म में आता है और दूसरा एल्गे ओमेगा 3 जो कि वेजिटेरियन है उस फॉर्म में आता है। तो जो फॉर्म वेजिटेरियन कैप्सूल के, नॉन वेज के कैप्सूल में आता है वो 500 मिलीग्राम का होता है और जो वेजिटेरियन में आता है वो 900 मिलीग्राम, तो थोड़ा कैप्सूल साइज बड़ा होता है। पैकेजिंग के अंदर भी अगर हम देखें तो नॉन वेज वाली पैकेजिंग जो है वो 180 कैप्सूल की है और वेजिटेरियन वाली कैप्सूल वो 120 कैप्सूल। एवरेज डोज जो है वेजिटेरियन का, वो वेजिटेरियन की बात करते हैं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस भी यही है कि लोग ज्यादा मुझे वेजिटेरियन ही मिलते हैं और वेजिटेरियन ही पसंद करते हैं। वेजिटेरियन कैप्सूल की ब्यूटी है कि उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स भी वेजिटेरियन है और उसके बाहर का जो शेल है वो भी वेजिटेरियन। ये भी एक एस्पेक्ट होता है कि कई बार अंदर का इंग्रेडिएंट वेज हो जाता है और बाहर का इंग्रेडिएंट नॉन वेज हो जाता है। एक तो ब्यूटी ये है। दूसरा उसकी डोज जो है वो है 2 कैप्सूल अ डे, 1 इन द मॉर्निंग, 1 इन द इवनिंग। दोनों कैप्सूल सुबह मॉर्निंग में भी लिए जा सकते। अब एटमी का ही क्यों? सबसे पहले तो एटमी का इसलिए, देखो मैं इसको ना एक एग्जांपल से समझता हूँ, ये एग्जांपल केवल आपके लिए नहीं है, आप इस एग्जांपल को अपने क्लाइंट को भी। हम बहुत बार जब चीजें जब खाने की चीजों की बारी आती है तो हम सब चाहते हैं कि हम अच्छी चीज खाएं और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज अच्छी है लेकिन महंगी है लेकिन हम फिर भी खाते हैं। तो हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जो अमेरिकन बादाम है वो उसकी गिरी 700-800 रुपये, लेकिन वही अफगानी बादाम जो है मामरा, उसकी गिरी 3500 से 4000, लेकिन उसके बावजूद भी वो महंगा है। कितने गुना महंगा? 7, 5, 6, करीब 6 गुना महंगा, 5 से 6 गुना। उसके बावजूद भी अगर आपके पास जेब में पैसे होंगे और मैं आपसे पूछूंगा आप कौन सी बादाम की गिरी पसंद करोगे, तो मेरे ख्याल में 99% हम अफगानी गिरी खाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि अफगानी गिरी के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि अमेरिकन बादाम है और वो है उसकी ऑयल कंटेंट। उसी प्रकार से किसी भी सप्लीमेंट में का प्राइस इस बात से तय होता है कि वो सप्लीमेंट कौन से देश में होगा, उसको कौन बेचता है, जो कंपनी बेच रही है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स कितने रिस्पॉन्सिबली सोर्स किए गए हैं, मतलब कितना जिम्मेवारी रखी गई है उनको सोर्स करने के लिए, उनकी स्टोरेज कैसी की गई है, जब उनको इंग्रेडिएंट खरीदे उसके बाद उसको कैसे स्टोर किया गया, उसके प्रोसेस क्या रखे गए, उसकी पैकेजिंग कैसे करी गई, तो ट्रांसपोर्ट कैसे करा गया, कंपनी की ऑथेंटिसिटी क्या है, कंपनी कितने देशों में वो सामान बेचती है, क्या कंपनी केवल बाजार में जाके जो सबसे सस्ता रॉ मटेरियल होता है वो खरीद के कैप्सूल में पैक करके आपके घर पहुंचा रही है बिना ये जाने ये कहाँ से आया है, केवल उस पर ओमेगा 3 लिख दिया, या कंपनी जो है 110 देशों में बिजनेस करती है एक ही प्रोडक्ट दुनिया का। मैंने प्रोडक्ट पे काम किया हुआ, मुझे पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है एक सिंगल प्रोडक्ट को एक जगह बना के 100 देशों में भेजना, क्योंकि हर देश की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट, हर देश के डिफरेंट पैरामीटर्स, आपको वो हर पैरामीटर को के माप पे चलना होगा, उस देश में जो पैरामीटर उसको मानना होगा, उसकी प्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी, उसकी टेस्टिंग की रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो एक बहुत मुश्किल काम होता है एक प्रोडक्ट को बना के 100 देशों में बेचना, एक ही जगह से बना डिफिकल्ट है। इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो शिलाजीत बनाती हैं, लेकिन वो सारी कंपनियां 100 देशों में, मेरे ख्याल में तो एक भी कंपनी नहीं है तो हिंदुस्तान में शिलाजीत बना के 100 देशों, आधे से ज्यादा देशों में तो वो फेल ही हो जाएगा। क्यों? कोई पैकेजिंग का इश्यू आ जाएगा, कोई प्योरिटी का इश्यू आ जाएगा, कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई देश कोई पैरामीटर डाल देगा जी ये हमारे ये। तो ये दुनिया में ये एक प्योरिटी का मापदंड है कि एक कंपनी एक ही प्रोडक्ट 100 देशों में, ये भी एक प्योरिटी का मापदंड है, ठीक है। और दूसरा ये मामरा बादाम, इसके इंग्रेडिएंट की प्योरिटी बहुत हाई है, एफिकेसी बहुत हाई है, जब ये आपके खाएंगे आपको शरीर को लगता है, शरीर को लगेगा, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब मुझे, जैसे मैं आपको लुधियाना वाले सरदार जी की बात बता रहा था, तो लुधियाना वाले सरदार जी ने रिजल्ट आगे बताया
तो बताया क्योंकि उनको पता था कि जो प्रोडक्ट वो खा रहे हैं वो प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसलिए जो सारे ओमेगा 3 सेम नहीं होते हैं, सिर्फ ओमेगा 3 कहने से ओमेगा 3 नहीं होता। अब बहुत बार लोग आके ये भी कहते हैं कि वेज ओमेगा 3 है तो हम फ्लैक्सीड खा लेंगे, कुछ लोग ये भी बोलेंगे हम फ्लैक्सीड खा लेंगे। तो पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो हमारा एल्गे का ओमेगा 3 है इसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक को बोलते हैं DHA, एक को बोलते हैं EPA। और जो फ्लैक्सीड है वो जो ओमेगा 3 भी जैसे मैंने बताया डिफरेंट टाइप के, फ्लैक्सीड के अंदर जो ओमेगा 3 पाया जाता है उसको बोलते हैं ALA। अब जो DHA और EPA जो हम कैप्सूल के जरिए खाते हैं उसकी एफिकेसी, उसके रिजल्ट, उसके आउटकम्स, उसके खाने से जो हमारे शरीर पे असर है वो फार बेटर देखा गया है ओवर कि अगर आप फ्लैक्सीड खाएं या फ्लैक्सीड का तेल पिए। ऐसा नहीं है कि फ्लैक्सीड के फायदे नहीं होते, ऐसा भी नहीं है कि फ्लैक्सीड तेल के फायदे नहीं होते हैं, लेकिन जो फायदा आप एक DHA और EPA से लेंगे वो आपको फ्लैक्सीड या फ्लैक्सीड के ALA वाले ओमेगा 3 से नहीं मिली। और थोड़ी सी हायर डोजेज में इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक डोज, एक होती है मेंटेनेंस डोज, एक होती है थेरेप्यूटिक डोज। तो अगर आप शरीर में कोई डेफिशिएंसी को दूर करने की कोशिश करते हैं तो उस समय में मेंटेनेंस डोजेस बहुत बढ़िया काम नहीं करती, तो थोड़ी थेरेप्यूटिक डोज देने से, थोड़ी हायर डोज देने से फायदा मिलता है और फायदा जल्दी होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग 40 और 50 साल के बीच में सपोज कोई चैलेंज से डील कर रहे हैं, गैस और ब्लोटिंग भी है, नहीं है तो इंडाइजेशन है, या फिर उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ही कमजोर हो गया है, ऐसी परिस्थिति में हमें थोड़ी ALA वाला ओमेगा 3 वैसे भी बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको शरीर ALA को EPA और DHA में परिवर्तित करता है। जो पावर शरीर की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो गई होती है तो वो कन्वर्जन बहुत अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो रिजल्ट हमारे को EPA और DHA से मिलते हैं उन लोगों के जिन्होंने ना कभी खाया है ना कभी ना सुना था, उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ। इस वजह से EPA और DHA वाले ओमेगा 3 खाने से हमारे को ज्यादा फायदा हो। और दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि क्लाइंट आके ये बोलते हैं कि अच्छा जो लोग फिश खाते हैं वो तो हम फिश खा लेंगे। मैं अगेन बात में समझा रहा हूँ कि फिश खाने से जो ओमेगा 3 मिलेगी उससे हम कुछ अपने शरीर में अगर रिवर्स करने की कोशिश करते हैं और उसका अच्छा बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो केवल मछली खाने से नहीं होगा। और आजकल वैसे भी मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो बहुत हाई ओमेगा 3 की मछली होती है वो थोड़ी सी महंगी होती है, और जो लोग गर्म होते हैं उसमें ओमेगा 3 कॉन्टेंट कम होता है। मैं कल चैट जीपीटी पे बैठ के देखता था, चैट जीपीटी से मैंने मछलियों की लिस्ट मांगी तो मैंने चैट जीपीटी ने बहुत सारी मछलियां मेरी रिजेक्ट कर दी, सिर्फ इसी वजह से कि इसके अंदर ओमेगा 3 का कॉन्टेंट कम। और वैसे भी अगर हम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर लोगों को, तो फूड, मैं ये नहीं बोल रहा फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, फूड उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उसको ओमेगा 3 से सप्लीमेंट कर देते हैं तो हमें बेटर फायदे और बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। अब एक एरिया जो मिस आउट हो गया जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है वेट लॉस। मतलब एक जमाना था जब मेरा वेट 92 kg, और मतलब मैं मन में सोचता था जिंदगी में कोई दिन होएगा जब मैं बिल्कुल पतला सा दिखूंगा। और क्या बोलते हैं, इसी उम्र में बड़े साल मैंने गुजारे। तो मेरी जो कॉलेज की एज थी, तो मैं टीनेजर था, तो मेरा वजन ज्यादा हो। लेकिन ओवर पीरियड मुझे समझ में आया कि जो लोग ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी रहते हैं और फिर वो वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जर्नी, ऐसा नहीं है कुछ वेट लॉस नहीं होता, कुछ लोगों का हो भी जाता, लेकिन उनकी जर्नी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। तो ओमेगा 3 के सेवन से वेट लॉस करने में भी आसानी आती है, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल तो मैं खुद ही हूँ। और मैं वैसे अपनी प्रैक्टिस में जिन लोगों के साथ वेट लॉस पे काम करता हूँ उनको ओमेगा 3 जरूर स्टार्ट करवाता हूँ। उसके बिना मुझे, उनको भी मुश्किल लगता है और मुझे भी लगता है रिजल्ट उतनी बढ़िया नहीं। तो वेट लॉस करने वाले लोग अच्छी एडवाइस होती है कि ओमेगा 3 का सेवन जरूर करें, फ्रॉम हेड टू टो, ये हर एरिया के अंदर हमारे को फायदा दे सकते। अच्छा, अब आ जाओ एक एरिया में मैं थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ, ये कि मेरे गुरु जी हमेशा एक बात बोलते हैं कि एक एरिया को पकड़ लो, वो एक चीज को पकड़ लो, एक लाइन को पकड़ लो, वो ये अपने आप को ये बोलो कि जो मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इस जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका ट्रीटमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का क्या योगदान है, अपने आप से ये।
अगर मुझे बॉडी एक हो रही है तो मुझे कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का क्या है? बहुत बार लोग ऐसे कि हम अपनी न्यूट्रिशनल को घर के खाने से पूरा कर लेंगे, नेचुरल चीजों से पूरा कर लेंगे, हो सकता है। लेकिन आपको ये समझना है कि नेचुरल चीजें जो लोग डिमांड कर रहे होते हैं, अक्सर वो नेचुरल चीजें बहुत नेचुरल होती नहीं है। दो कारण, पहला ये कि खेत के अंदर भी चीजें सप्लीमेंट डाल के उगती है। किसी को पता है खेत में कौन सा सप्लीमेंट डलता है सब्जियां उगाने के लिए? कौन सा सप्लीमेंट, कोई चार्ट में लिखो, कौन सा सप्लीमेंट खेत में डाला जाता है सब्जी उगाने के लिए? चार्ट में लिखो, कौन लिख रहा है? कौन सा सप्लीमेंट स्टेटमेंट? किसी ने देखो कितना बढ़िया लिखा, यूरिया। अब मुझे बात बताओ, यूरिया से अगर सब्जी उगाई जाएगी, हार्मोन, ये फर्टिलाइजर से जब सब्जी उगाई जाएगी, आप इसी सब्जी पे डिपेंड करना चाहते हैं अपने नेचुरल सोर्सेज के लिए कि हम तो यही खाएंगे, इसी से ही हमारे को जो है ना। तो आपको ये समझना है कि खेत में इतना दम था नहीं। खेत के अंदर फर्टिलाइजर डाला जाता है, यूरिया डाला जाता है, किसी ने लिखा डीपीए, केमिकल भी डाला जाता है। वो केमिकल के एंगल को तो मैंने देखा ही नहीं, क्या? तो ये डाला जाता है और उसमें आपका कस्टमर आके हमारे को ये बोले तो मुझे नेचुरल चीजें बताओ, तो मैं नेचुरल चीजें बता सकता हूँ, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं। अब ये 21वीं सदी है, इसमें रिजल्ट। अच्छा, एक ये भी मेरे को चैलेंज आता है बहुत बार, यहाँ पे लोग बोलते हैं हमारे दादाजी तो ओमेगा नहीं खाते। मैं क्यों खाना है हमारा दादाजी? लेकिन आपके दादाजी ये वाला खाना भी तो नहीं खाते थे, ये वाले खेतों का। आपके दादाजी ये वाला आरओ का पानी भी तो नहीं पीते थे। आपके दादाजी ये वाले पोल्यूशन में भी तो नहीं रहते थे। हम तो खैर दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन हमसे ज्यादा कौन कर सकता है पोल्यूशन, दिल्ली में रहने वालों से ज्यादा। तो आपके दादाजी ये वाले पोल्यूशन में नहीं करते थे। आपके दादाजी के टाइम में गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम भी नहीं, थायराइड भी लोगों के खराब नहीं होती। आपके दादाजी के टाइम में 2 मिनट में कुछ बनता नहीं था उसके ऊपर, वो बच्चे नहीं खाते थे, वहां होता ही नहीं था जो 2 मिनट में गैस। आपके दादाजी के जमाने में वो पूरी पूजा भी नहीं आती थी जो 6 सेकंड में गैस और ब्लोटिंग। बहुत सारे, अगर दादाजी से कम्पीट करना है तो बहुत सारी चीजें वो भी करनी चाहिए जो दादाजी। खाना हमारे घर में चूल्हे पे बनता था, दिन में 2 बार चूल्हा जलता था। अब दिन में 25 बार लोग चूल्हा जला ले गए, गैस ऑन करी, कुछ बनाया और खा गया, देखो पीछे भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दादाजी से अगर हमें कम्पीट करना है तो दादाजी वाली जीवन शैली जीवन। दादाजी, मेरे दादाजी तो अपने काम पे साइकिल पे जाते थे और दिन में 15 किलोमीटर पैदल भी चल लेते थे। अब तो गिन के 10,000 स्टेप करके लोग बोलते हैं आज मैंने 10,000 स्टेप किए, पता है आपको? ठीक है, तो इसलिए दादाजी वाला जीवन जीना है तो दादाजी के स्टाइल में खाना पड़ेगा, दादाजी के स्टाइल में चलना पड़ेगा, दादाजी के स्टाइल में सुनना पड़ेगा, दादाजी की जीवन शैली अपनानी। ठीक है, और बाकी जो है ये एक पर्टिकुलर थी। आज का जो सेशन था ये ओमेगा 3 के बारे में था। सप्लीमेंट मेरे दिल के बहुत करीब है, तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इसको आप खूब खाइए और खूब इसका लाभ उठाइए। और जो है सेहत से आगे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट एक लेडी का मेरे को कल फोन आया, बहुत इंटरेस्टिंग फोन था। मैंने उनको बोला कि ओमेगा 3 खाएं, तो उन्होंने बोला सर ये तो महंगी है। तो मैं जब बाजार जाता हूँ, मैं लोगों को चीजें के पैसे खरीदते हुए देखता हूँ कि लोग खाने